Hello all of you. Right now I am going to discuss about nutrition in amoeba. Okay, that key how amoeba they are used to intake their nutrition. But starting that nutrition amoeba, we have to know that what are the different steps. Okay, that involve in intaking of the nutrition before starting that of the amoeba. Okay, nutrition in amoeba. So firstly it is say that key steps in taking of nutrition, in taking of न्यूट्रिशन. अगर आप पहले स्टेप अगर जान जाओगे कि क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या स्टेप्स का क्या क्या यूजेस है, तो ये आपके लिए ना बहुत अच्छा होगा. तो सबसे पहले बात ये बोलता है कि अगर आप न्यूट्रिशन को इनटेक कर रहे हो तो वो पहली प्रोसेस क्या हो सकती है. सो इट इज़ से दैट ना कि द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिशन इज इंजेशन. व्हाट इट इज़? इंजेशन. इन का मतलब होता है अंदर लेना. ओके, सो फर्स्ट इज व्हाट? इंजेशन. सेकेंड, व्हेन यू आर इनटेकिंग द फूड, अगर आपने उसको ले लिया तो अब वो क्या होगा बताओ? डाइजेस्ट. सो सेकेंड प्रोसेस इज डाइजेशन. थर्ड इज योर एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन. आफ्टर डाइजेशन देयर इज एब्जॉर्प्शन. And when that food it is absorbed, then it should be assimilated. Okay, assimilated means here it should be utilized. So it is say that assimilation. Clear? And last one is what? Egestion. Egestion means that कि whatever the food it is left, it should be taken out. So right now, firstly I will discuss about the meaning of all that different steps. Okay. So first step is that ingestion. Okay. सो इंजेशन मीन्स दैट इनटेकिंग ऑफ फूड. आप पहले ना मीनिंग जानो. इंजेशन चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टी सेलुलर, या फिर आपका ह्यूमन बींग, अगर वो फूड को इनटेक कर रहा है ना, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. सो ऑलवेज रिमेंबर, इंजेशन मीन्स इन टेकिंग ऑफ फूड. इन टेकिंग ऑफ फूड. ओके. सेकेंड इज डाइजेशन. अगर उसने खाना को लिया तो ओबियसली उसको डाइजेस्ट भी कराना है. तो डाइजेशन का मतलब क्या कि जब भी डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस करता है मींस देयर इज़ द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स. तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो फूड जो उसने इनटेक किया उसके ऊपर क्या होगा कि एंजाइम्स एक्टिव होगा एंड वट एवर द कॉम्प्लेक्स फूड इट इज़ ना दैट इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म. सो रिमेंबर, इन द केस ऑफ डाइजेशन व्हाट विल हैपन? कॉम्प्लेक्स फूड breaks down into simpler form. Okay, now it is say that ki here the food it is completely said ki complex food it is broken down into that the simpler form. So after breaking down of that food what will happen? It will be absorbed. Okay, so where it will be absorbed and where it will go? So it is say that ki after digestion that food it will goes into the blood or in the lymph for the further process. So remember that next process is your absorption. So it is say that ki absorption it is taken place, okay, that in the blood or in lymph. Okay, for that of the utilization purpose. Most important thing that it has to utilize. Now next is what? Assimilation. So what is the meaning of assimilation? एसिमिलेशन मीन्स ना कि उसको यूटिलाइज करना. मतलब क्या करेगा कि ब्लड जो है उस फूड को लिया, जो भी आपका डाइजेस्ट हो गया, जो भी आपका एब्जॉर्ब हो गया, अब उसको क्या करेगा कि जहाँ जहाँ सेल में उसकी ज़रूरत होगी ये क्या करेगा कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराएगा. तो याद रखना है कि एसिमिलेशन के केस में क्या होगा कि जो आपका एब्जॉर्ब फूड है वो क्या करेगा? एसिमिलेट होगा, वो यूटिलाइज होगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, इन द केस ऑफ एसिमिलेशन व्हाट विल बी हैपन? दैट फूड इट विल बी utilized. Okay, utilization of the food. Utilization of food. Remember, clear? So here it is say that in the case of assimilations there will be utilization of the food. And the last one is that egestion. What it is? Egestion. Now see बच्चे, what will happen in the case of egestion? इजेशन का मतलब क्या ना कि जो कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट जो बच गया अगर वो बॉडी से बाहर अगर निकलता है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर इजेशन. मीन्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड फूड. रिमूवल of what? Unwanted food.
So I am writing it here, unwanted food. So remember that what it is said कि there are how many processes? 5 process. So meaning of all that 5 process is what? Ingestion means intaking of the food, food का लेना. डाइजेशन का मतलब लेके उस खाने को उसको ब्रेक डाउन कराना, मतलब वो जब भी मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले उसको क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कराना. एब्जॉर्प्शन में क्या कि जैसे वो ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपलर फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो अब वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, इन द ब्लड और यू कैन से इन द लिव. Then after it will go for the further process that is called assimilation. Assimilation का मतलब क्या कि अब उसको यूटिलाइज किया जाएगा जहाँ उसकी ज़रूरत हो. ओके, सो यू विल से कि दैट यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड. ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ absorbed food that is in the blood or in the lymph. So in the case of egestion, what it is say that last one is egestion. Egestion means that removal of removal of unwanted food, means whatever the food it is left over, so that if it is a rid off from your body, that it is called the egestion. So very simple, these are the steps. Okay, so all that steps ना it will be also goes through that of the amoeba. amoeba भी ना इन सारे steps को follow करेगा. not only the amoeba, हम जो human beings है ना, हम लोग भी इसी सारे process को क्या करते हैं? follow up करते हैं. so what we have to know right now, we have to know about that nutrition in amoeba, कि how that amoeba they are following that processes. now see बच्चे, so what I said कि first step is इंजेशन, मीन्स अमीबा भी क्या करेगा कि पहले फूड पार्टिकल्स को वो इंजेक्ट कराएगा. सो हाउ इट इज़ जस्ट यूज टू इनटेक दैट ऑफ द फूड पार्टिकल. सो इट इज़ से दैट कि फर्स्टली अमीबा है क्या? तो याद रखना कि अमीबा जो है ना ये ओमनीबोरस है. ठीक है, ओमनीबोरस का मतलब क्या कि जो दोनों, मतलब आपका जैसे एनिमल्स को भी जो ये खाता है, आपका वेजिटेबल्स को भी जो खाता है, उसको ओमनीबोरस हम लोग कहते हैं नॉर्मली. तो अमीबा हमारा क्या है कि ओमनीबोरस मीन्स कि इट इज़ यूज टू ईट बैक्टीरिया एज वेल एज योर दैट यू कैन से फाइटोप्लैंक्टन्स. ओके, सो यू कैन से कि अमीबा जो है वो ओमनीबोरस है, मतलब दोनों चीज़ को खाना पसंद करता है. सेकेंड थिंग क्या है कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना वो होलोजोइक है. ठीक है, होलोजोइक का मतलब आपको पता है कि होलोजोइक का मतलब क्या कि जो इंजेक्शन प्रोसेस से होके गुजरता है. ठीक है, अब कहते हैं क्या कि अमीबा जो है इन सारे प्रोसेसेस को कैसे फॉलो करता है. तो फर्स्ट स्टेप दैट इट इज़ इन्वॉल्व इन टेकिंग ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा इज इंजेक्शन. तो भाई यहाँ पे भी आपका इंजेक्शन है. तो अमीबा इंजेक्ट कैसे करेगा? अमीबा के पास तो कोई हाथ पैर होता नहीं कि वो चल के जाएगा और खाने को वो कैप्चर करेगा. तो उस कंडीशन में क्या कहता है कि मान लो कि मेरे पास एक अमीबा है. ठीक है, उसको क्या है ना कि कोई अगर फूड पार्टिकल से दिखा, उसको भूख लग रखा है. ठीक है, ये इसका मान लो कि ये इसका प्रे है. ठीक, ये आपका अमीबा. तो ये क्या करेगा ना कि अमीबा के पास फॉल्स फीट होता है, फॉल्स फीट, and that false feet or you can say irregular shape of amoeba that is called pseudopodia. pseudopodia. अमीबा अपने फॉल्स फीट से क्या करेगा कि जहाँ इसको प्रे मिलेगा जाएगा उसको कैप्चर करने के लिए, अपने इरेगुलर शेप से गया और जाने के बाद क्या करता है कि अपनी बॉडी का जो शेप है ना उसको चेंज करता है. और बॉडी का जब वो शेप जो है जैसे कि अगर चेंज किया ना तो हुक लाइक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाता है. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल. इसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल. ये फूड वैक्यूल बनाया. ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये जो इसका प्रे है, जो इसका शिकार है, इसको क्या करेगा, ये इसके अंदर लेगा. ले लिया अमीबा. पता है जैसे ही अमीबा इसके अंदर लेता है ना तो ये जो मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो, जो सेल मेम्ब्रेन है अमीबा का, एक्चुअली ये कैरी करता है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को. अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है, या यूँ बोलो कि ये लाइजोजोम्स को कैरी करता है. ये लाइजोजोम्स क्या करेगा कि इसके ऊपर जो है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिव करना शुरू करेगा. और जैसे ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिव करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जैसे ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एक्टिव करेगा, ये जो फूड है यहाँ पे ये डाइजेस्ट हो गया. ओके, मीन्स
फर्स्टली क्या कि वो फूड को क्या करेगा, इंजेस्ट कराएगा, फिर क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कराएगा। तो डाइजेस्ट कहाँ करा रहा है भाई, यहाँ पे फूड वैक्यूल में, ठीक है, किसके हेल्प से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के हेल्प से, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना, ये हाइड्रोलाइटिक क्या कर रहा है, एंजाइम्स को रिलीज कराने के काम कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइजोजोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और वही लाइजोजोम्स क्या कर रहा है कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है, ठीक है। फाइनली खाना क्या हो गया आपका, डाइजेस्ट। अब ये डाइजेस्टेड फूड क्या होगा कि सेल के बॉडी पार्ट पे आएगा, वो अंदर आएगा, ठीक है। ये जो आपका अमीबा है ये क्या करेगा, इसके बॉडी के अंदर आएगा। ओबेस है, अगर बॉडी के अंदर आना मतलब क्या, साइटोप्लाज्म पे उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कराएगा। तो अब इसके बाद क्या कि अमीबा जो है उस फूड पार्टिकल्स को ना अपने बॉडी के अंदर लेके आ गया, ठीक है। ये मान लो कि ये फूड पार्टिकल्स अंदर आ गया, ठीक है। अब ये जैसे ही अंदर आएगा तो अब ये क्या करेगा बताओ, एब्जॉर्प्शन होगा ना। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या कि जो भी ये इसका डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा कि अब धीरे धीरे जो भी सराउंडिंग जो साइटोप्लाज्म है उसके चारों तरफ क्या करेगा, वो स्कैटर करेगा, ठीक है। मीन्स क्या, वो धीरे 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 क्या होगा कि चारों तरफ वो एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। मीन्स क्या कि डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म के हेल्प से अंदर आया, अंदर आने के बाद क्या करेगा कि पूरे बॉडी पे जहाँ जहाँ होगा वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा। मीन्स दिस इज द केस ऑफ क्या, एब्जॉर्प्शन। अब ये कहाँ आ गया है, साइटोप्लाज्म पे, साइटोप्लाज्म पे आ चुका, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, अब जो नेक्स्ट बॉडी है उसको क्या करना, पूरे बॉडी पार्ट पे क्या करेगा, एसिमिलेट कराएगा। तो भाई सवाल ये कि एसिमिलेशन अगर वो करवा रहा है एब्जॉर्ब फूड का तो कैसे करवा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कहता है क्या है कि जो एसिमिलेशन प्रोसेस है ना, दैट इट इज़ ओनली टू यूटिलाइज और टू जनरेट द एनर्जी, ठीक है। और ये एनर्जी जो उसको मिलता है ना, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और यू कैन से और इन द फॉर्म ऑफ द फैट, ओके, दैट इट इज़ यूटिलाइज। इवन सेकेंड थिंग इट इज से दैट ना कि फॉर द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म अगर आपको पता होगा तो प्रोटोप्लाज्म इन शॉर्ट क्या कि ये जो साइटोप्लाज्म है प्लस न्यूक्लियस के अंदर का जो भी बॉडी पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर वो साथ में अगर कंबाइंड होता है ना, सो देन इट इज़ कॉल्ड व्हाट, प्रोटोप्लाज्म। सो व्हाट इट इज से दैट कि in the case of assimilation that absorb food, okay, that it will be utilized for giving energy in the stored form, that it is called what, glycogen, or you will say fat, and that it is utilized even for the synthesis of protoplasm. तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कर रहा है कि आपका जो अमीबा है वो क्या किया कि अब वो फूड को पूरे बॉडी पे समझो क्या सिमुलेट कराएगा। मीन्स हेयर assimilation means what, that it is the utilization। तो अब ये क्या करेगा यहाँ पे, याद रखना कि यहाँ assimilation के केस में utilization of absorbed food, okay, for what, for obtaining energy, what will you say, for obtaining energy। so remember that what it is say that कि in the case of assimilation that utilized absorbed food they are just used for giving the energy, okay, and it is say that that of the energy either in the form of the glycogen or in the form of the fat, okay, remember। now next last process is what, last process just is that is egestion। so here I am drawing that egestion, okay। so suppose that na कि what happened, that of the waste product it is left over there, so it is say that na कि it is used to make the contractile vacuoles, amoeba is used to make the contractile vacuole। अब ये contractile vacuole क्या पता है, इसके बॉडी पे जितना आपका वेस्ट प्रोडक्ट है अमीबा क्या करेगा कि इन सब को कलेक्ट करके एक कॉर्नर में शिफ्ट करेगा, ठीक है, दैट इट इज कॉल्ड द खोपचा। इसको ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको रख लिया। फाइनली अगर ये यहाँ पे अगर आएगा तो ऑब्वियस है ना ये वाला जो बॉडी पार्ट है वो स्वेल करेगा। अब ये जैसे स्वेल करता है तो ये क्या करेगा कि ये वाला जो मेम्ब्रेन है आपका सेल मेम्ब्रेन ये रप्चर्स करेगा, और रप्चर्स करने के बाद क्या करेगा, जो भी यहाँ सेल बॉडी पे कंटेंट्स जो आपका वेस्ट है सब बाहर अमीबा से, ठीक है। फाइनली फिर क्या करेगा कि अमीबा अपने बॉडी शेप को रिगेन कराएगा, फिर से अमीबा क्या है, रेडी है फॉर इनटेकिंग ऑफ द फूड। तो ये सारा क्या है, प्रोसेस है अमीबा का। तो ये चीज़ आप याद रखना, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, digestion। means here it is just used to get rid of that of the waste products or waste food items।
सो फर्स्ट स्टेप दैट इज द इंजेशन. इंजेशन के केस में अभी अमीबा क्या कर रहा है, इट इज यूटिलाइजिंग इट्स फॉल्स फीट दैट इट इज कॉल्ड द pseudopodia. With the help of pseudopodia it is just used to intake that food, and when it is just used to intake food now, they are just used to change its body shape, and it is called the food vacuole. Inside of that food vacuoles it is used to capture that food. Okay, then after it is used to produce digestive enzymes, or you can say hydrolytic enzymes over there. Food it is completely digested. Then after that digested food now, it is sent on the cytoplasm. After sending on the cytoplasm, it is absorbed, and after that absorption of the food, okay, what will happen? It will be assimilated. Assimilated means it is utilized to provide energy either in the form of glycogen or in the form of the fat, or it is used in the synthesis of protoplasm. Clear? Finally, last step is egestion, and in the case of egestion, what will happen? Whatever the waste food it is left over on their body, so they will be just get rid of from their body parts by rupturing that cell membranes. And what will happen? So finally, after that, amoeba it is retaining their body shape, and again after some times they are just ready for intaking of the food item. So thank you. So that it is the part of